Hello, sir. Your voice is not audible. You have muted yourself. Okay, so I think I just talked this much, that I have marked the position of 0, then I have marked the position of poles P1 and P2. Okay, then I said S equal to 0 gives me this position of zeros. S equal to -1 plus j and -1 minus j gives me the positions of P1 and P2. Okay, then I am writing the applying the partial fraction to this given function. So therefore I am getting new equation, I of s equal to 4 into a upon s plus 1 minus j and s plus 1 plus j. Now this gives me the direction to find a and b. This equation tells me to find the values of a and b. So the a can be found out by using h into, right? Now a can be found for this given function, given value of s, that is for pole. Now this pole is representing what? -1 plus j. -1 plus j. S equal to means what? यहाँ पर s equal to you have to write, and when you write it you get -1 plus j. So this is -1 plus j. It means for first pole P1 we have to get the value of a. So now with respect to that P1, the equation is ZP1. This is again I am telling not a minus sign. Z to P1 is the distance. Then as there is only one pole present, 1 0 present, means one pole means two poles, but for measuring the distance P2 to P1. So A equal to H into this. Now value of H is 4 multiplied by ZP1. Now the distance can be measured from this end, that is Z to P1. This Z to P1 can be marked, can be found by using Pythagoras rule. Right? So here I am applying Pythagoras theorem. Pythagoras theorem gives me the value of Z to P1 ka distance. So this is in say centimeter, say √2, because the value is -1 is the unit and here it is plus j means +1. So ये है आपका 1, ये है आपका 1. So root of 1 square plus 1 square. Root of 1 square plus 1 square. That gives me √2. Can anyone tell me the angle? Can anyone tell me the angle? 45 degrees. 45. Sorry, 135, sir. One. Yes. 135. As I said, you have to start from that particular end, no? जहां से आप उस लाइन को स्टार्ट कर रहे हो. जैसे ये लाइन आपका कहां से जा रहा है? Z से शुरू होकर P1 की तरफ जा रहा है. Z से शुरू होकर P1 की तरफ जा रहा है. इसका मतलब इस पॉइंट से शुरू होगा ना. सो ये एंगल आप मेजर करो. अगर आप यहां से मेजर करते हो तो ये ऑलरेडी 180 डिग्री पर है. ये ऑलरेडी 180 डिग्री पर है. तो फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? -140, -45. सो यहां अगर आप इस एंगल की तरफ यानी क्लॉकवाइज जाते हो तो -45, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो 135. क्लॉकवाइज जाते हो तो -45 और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो +135. सो हियर इफ यू राइट -45 वो भी चलेगा, या फिर आप लोगों ने अगर +135 लिखा तो भी चलेगा. ओके, कंफ्यूज ना करे खुद को. बेहतर है कि जो स्टेप्स मैंने बताया, जिस मेथड को मैंने बताया उसी मेथड से चले. अगर आप अपना लॉजिक लगाते हो तो भी चलेगा. लॉजिक ये ज्योमेट्री वाला आपको मालूम चाहिए. अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो इसका मतलब आप इस लाइन के तरफ जा रहे हो, तो आपको इस लाइन से इस लाइन तक का एंगल मालूम चाहिए. तो अगर आप यहां से यहां जा रहे हो इसका मतलब यू आर मूविंग क्लॉकवाइज. योर डायरेक्शन of measuring that angle is clockwise. So clockwise that orientation, when you have that clockwise orientation, you get 45 degree, but as it is clockwise, therefore you have to write -45. If you doing measurement from this side, आपको कितना मिलेगा? +135. यानी यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो टुवर्ड्स दिस लाइन. So it means you are measuring the angle between reference axis and that particular axis which is made. हाँ, अगर आप कहो कि सर हम लोग यहां से यहां तक का एंगल मेजर करें तो चलेगा. यहां से यहां तक का एंगल आपका क्या रहेगा? 180 -40 माने -180 -45, तो वो होगा आपका 225 एंगल, 225 डिग्री. बट -225 क्योंकि आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे. बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास ये एक लाइन है. अब इस लाइन को मैं कैसे मेजर करूं? मेरे पे डिपेंड करता है. मेरे पास रेफरेंस एक्सिस है ये वाला. तो अगर इस लाइन को मैं यहां से मेजर करता हूं तो मैं किस ओरिएंटेशन में जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये मेरा 90 डिग्री है. सो 90 प्लस दिस एंगल 45.
सो 90 प्लस 45 कितना होगा 135, ये होगा 135। अगर आप लोग इस पॉइंट से मेजर करते हो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा -45। अगर आप यहां इस लाइन से मेजर करना चाहते हो कि भैया पॉजिटिव 0 से मैं मेजर करना चाहता हूं तो आपको कितना मिलेगा -225। तो अल्टीमेटली आपको ये लाइन का एंगल मेजरमेंट करना है ना, तो ये ध्यान में रखिए कि आप यहां से मेजर करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने यहां से लिया हुआ है, क्योंकि इस पॉइंट से वो लाइन शुरू हो रही है वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहां पर तो ठीक है 135 है, कोई अगर आड़ा टेढ़ा न्यूमेरिकल आ गया तो आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसका फाइंड करने का तरीका सिंपल है, उसका फाइंड करने का तरीका सिंपल है। अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने आर एंगल थीटा लिखा जाता है ना, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, और आर एंगल थीटा में से आर फाइंड करने का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आर क्या है, पाइथागोरियन रूल से ये फॉर्मूला आपको मिल रहा है, आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे मैं एक्स का मेजरमेंट करूं तो मेरे पास कितना है -1, वाई का मेजरमेंट करो तो ये कितना है +1, सो -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा √2, दैट दिस गिव्स मी √2। ओके, नाउ इट इज इक्वल टू, अब यही कितना है मेरे पास -x माइनस सॉरी एक्स एक्सिस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो -1, और ये है मेरा +1, सो व्हाट आई गेट इज tan इनवर्स ऑफ -1/1। Can anyone tell me the value of this tan inverse of -1/1? Either it should be -45 or -225 or +135। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर कुछ तो गलत हो गया। -45। -45, ठीक है। सो दिस इज -1 +1, ठीक है। सो tan इनवर्स गिव्स मी यस -45। तो इसका मतलब मैंने आपको जैसे कहा कि कोई तो एक आंसर मिलना चाहिए, इधर यू शुड गेट दिस और दिस और दिस। अगर आपको -45 मिल रहा है तो इसका मतलब वो मेजरमेंट कहां से हो रहा है, इस लाइन से यहां तक का, और अल्टीमेटली अगर -45 आप 180 से माइनस कर देते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 135 डिग्री। ठीक है, इतने तो आप लोग स्मार्ट हो ज्योमेट्री में, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा ज्योमेट्री पढ़ाने की मुझे जरूरत पड़ेगी। फाइन, सो ये हो गया आपका √2 135 डिग्री। अब ये हो गया द डिस्टेंस बिटवीन Z टू P1। कैन एनीवन टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन P2 टू P1? हम लोग 2 P2 से P1 तक जा रहे हैं, हम लोग P2 से P1 तक जा रहे हैं। 2 सर। Yes, this 2. Can anyone tell me angle? 90. चलो, यू आर टेलिंग मी 90, तो ये है एंगल आपका 90, यानी यहां से आप जा रहे हो यहां तक मेजर कर रहे हो, सो देयरफॉर इट इज 90 डिग्री। प्लस माइनस Plus. प्लस, ठीक है। सो नाउ इट इज इक्वल टू, अब आपका ये आंसर कितना होगा 2√2 और एंगल कितना है आ रहा है देखे तो प्लीज, जस्ट चेक माई आंसर्स। सर 2 + 2j। 2 + 2j 2√2j आ रहा है होगा। अच्छा 2 + 2j आ रहा है, 2 + 2j आ रहा है, उसको पोलर फॉर्म में लिखे तो कितना आ रहा है? सर 2√2 एंगल 45। 2√2 एंगल 45, उसको आप S2D आपके कैलकुलेटर में होगा, S2D अप्लाई करें। 2.8284 एंगल 45। 2.82 मेरे ख्याल से मेरे पास फिर 0.7074 कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना, ओ ओ सॉरी सॉरी, यस मल्टीप्लाइड बाय 2, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कितना बोला आतिश आपने आंसर? 2.8284 एंगल 45। एंगल तो कोई दिक्कत नहीं, 2.8284, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, इट्स अ कांस्टेंट व्हिच वी आर फाइंडिंग, दैट इज a, एनीहाउ इट इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेस, सो देयरफॉर देयर इज नो यूनिट। ठीक है, और लॉजिक और दिमाग ओपन रखा करो कि मैं क्या कह रहा हूं, दिमाग ओपन रखा करो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। ओके, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, ए का वैल्यू हमें मिल गया, लेट अस फाइंड द वैल्यू फॉर बी। अब आप कहोगे कि सर बी का वैल्यू सेम रहेगा, सर बी का वैल्यू सेम रहेगा, लेट अस चेक नो, लेट अस चेक। अब पोजीशंस क्या क्या है, 0 की पोजीशन है यहां पर, सो आई जस्ट मार्क देयर। उसके बाद P1 का पोजीशन है यहां पर, सो दिस इज P1,
उसके बाद दूसरा पोजीशन है यहाँ पर, सो दिस इज P2 एंड नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ B, और B का वैल्यू फाइंड करने के लिए H इंटू ZP2 अपॉन P1 P2. H का वैल्यू इज सेम, इट इज 4 नाउ, ठीक है. अब ZP2 यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सो आई जस्ट राइट फाइंड्स B, ओके. और पहला जो डायग्राम था दैट फाइंड्स A. अब यहां पर मैंने दो ही डायग्राम्स निकाले हैं, दैट्स टू सेव माय टाइम. सो फाइंड्स A, फाइंड्स B, H, ZP2, this is P2, right? So can you tell me the value of P2, ZP2 का डिस्टेंस कितना रहेगा? ZP2 कैसे फाइंड करोगे? फिर से वही रहेगा ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, √2 सर. √2. This is 1, right? So ये होगा आपका रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, so it is equal to √2. So √2 angle, not multiplied by. Yes, tell me angle. -135. -45. अच्छा, -45. एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है फिर से. अब अगर आप यहां से मेजर कर रहे हो तो आप जा रहे हो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से होगा +45. अगर आप यहां से यहां तक का मेजर कर रहे हो तो ये क्या होगा? -135. -135. यस. अगर आप कैलकुलेटर में पुटअप करोगे तो ये हो गया मेरा आर का फुल वैल्यू, बराबर है, आर. अब मैं थीटा हूं यानी इसका एंगल फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स ऑफ, बराबर. अब tan इनवर्स में मुझे क्या चाहिए, -1, ये हुआ x का वैल्यू, और ये हुआ -1 यानी y का वैल्यू. सो y/x यानी होगा मेरा -1 अपॉन -1. सो मेरे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1, दैट इज 1, एंड tan इनवर्स ऑफ 1 इज व्हाट, 45 डिग्री. आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैं भी देख लेता हूँ ना. सो tan इनवर्स ऑफ, अच्छा, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आ रहा है? tan इनवर्स 1 कितना आ रहा है? किसी को कुछ आ रहा है क्या वैल्यू? 45. 45. सो यहाँ पर आप 45 लिख सकते हो, और यू कैन राइट -135 ऑल्सो. हाँ, देर इज नो इशू. यहाँ पर भी मैं आपको लिख के रख देता हूँ. सो दिस मे बी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ -1 फाइंड किया, सो दिस इज ईदर -45 और -45 और 135 डिग्री. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों को ध्यान में आ चुका है, ठीक है. सो ये हो गया. उसके बाद नाउ टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन P1 टू P2 फास्ट. P1 टू P2 का डिस्टेंस क्या रहेगा? 2. P2 P2 का डिस्टेंस सेम रहेगा 2. ओके, बट व्हाट इज एंगल? -90. यस, एंगल आप यहां से यहां तक का मेजर करोगे तो ये क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज. सो इसके हिसाब से ये क्या होगा, -90. सो नाउ टेल मी अगेन, 2 × 2 यानी आपका 2 2 4, 2√2, 2√2 का आ जाएगा -45. सो 2√2 -45 क्या होगा, देखे तो फास्ट. Yes, tell me fast. Fast. Are you getting the same answer? Is the value of B and A both same? Yes, sir. Same. Don't you No, think sir, there is a phase difference of 180 degree? A का वैल्यू कितना है, 2.8284 एंगल 45, एंड B का वैल्यू क्या आ रहा है, No, sir. 2.84 -45. No, sir, I'm talking about answer B. I got same answer. हाँ, but angle is different, no? Yes, sir, angle is different, -45. So it means if the angle is different,
that indicates there is a phase difference of 180 degree. But the angular displacement is there. Are you getting my point? Yes, sir. So I just show you the last two numerical. I think where we found, yes, just check here. Can all of you see this? The value of B and C. The value of B is 1.5 and the value of C is also 1.5. So here you can say that B is equal to C. Like when you find the distance of say P2 or the distance of P3. एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में लिया था. So when finding the distance of P2, that polar complex pole, or P3, another complex pole, that distance gives me the same value for B as well as same value for, that is B and C both are same. But is the values same? No, the values magnitude is same, but the angle is different, and that angle matters. ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? क्या कहा मैंने अभी? Anyone? आतिश, I just want to hear it something from you. अभी जो मैंने कहा. सर अभी जो मैंने कहा वो सुनना चाहता हूँ मैं. सर मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है, बट एंगल वेरी कर सकते हैं सर. एंगल वेरी करेगा. तो जैसे आप उस पॉइंट का पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट ले जाते हो, तो वहां पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 180 डिग्री का होगा. अगर आप सेम लाइन पे रखते हो, सेम वैल्यूज पे प्लॉट करते हो, तो प्लस माइनस एक्स प्लस जे और माइनस एक्स माइनस जे में फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माइनस एक्स प्लस जे माइनस एक्स माइनस जे, इसमें फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री. तो वही 180 डिग्री आपको यहां मिल जाएगा. तो जो लास्ट क्लास का न्यूमेरिकल है उसमें आपको 1.5 बी और सी का वैल्यू मिल गया. तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. वही चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2.8284, लेकिन एंगल में डिफरेंस आ रहा है. और वो एंगल में डिफरेंस कितने एंगल का है आतिश? एंगल में डिफरेंस कितने एंगल का है? 180 डिग्री. एंगल में डिफरेंस है आपका 180 डिग्री. यहीं से आपको पता चल जाता है. जैसे ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें P1 इस पॉइंट पर है. कौन से क्वाड्रेंट में है P1 आतिश? फर्स्ट क्वाड्रेंट है. नो सर, सेकंड. क्योंकि मुझे बचपन से ये बताया गया कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है. सॉरी सर, वो गलती सर. ठीक है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है. तो जितना मुझे बताया गया था उसी हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर आप डिस्टेंस सेम है और पॉइंट आप सेकंड क्वाड्रेंट पे और थर्ड क्वाड्रेंट पे सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ करते हो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये दिख रहा है यहाँ पर 180 डिग्री. तो अगर पहले वाला आपका प्लस आ रहा है तो दूसरा माइनस आएगा. पहले वाला प्लस आ रहा है तो दूसरा माइनस आएगा. और उसका तरीका फाइंड करने का यही है. आर फाइंड करने का ये है, थीटा फाइंड करने का ये है. लेकिन दिमाग खुला रख के उस न्यूमेरिकल को आपको अटेम्प्ट करना है. ओके, लेट इट बी. आप लोगों को ध्यान में आ चुका है. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. नाउ I of s is equal to so A is 2.8284 angle 45, okay, अपॉन, यहां पर मैंने 4 नहीं लिखा है, ध्यान में रखें. आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. S +1 माइनस जे बराबर एंड प्लस 2.8284, चलो लिख लेते हैं, -45 अपॉन S +1 प्लस जे. देखे तो एक बार, सही है क्या? 1 माइनस जे एंड 1 प्लस जे, करेक्ट. ओके, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस इन अप्लाई? खत्म हो गया न्यूमेरिकल.
अप्लाई इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, टेल मी आई ऑफ टी क्या होगा? आई ऑफ टी क्या होगा? 2.828 angle 45 एंगल 45 e raised to the power minus 1 minus j t into t into t plus 2.8284 angle minus 45 e raised to power minus 1 plus j into t. 1 plus j into t. Perfect. हो गया. So I have replaced that e raised to power minus 80, यानी a को मैंने सिर्फ ये वैल्यू से रिप्लेस किया. फर्स्ट वैल्यू ऑफ a इज दिस, सेकेंड वैल्यू ऑफ a इज दिस. अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ना कई बार बच्चे क्या करते हैं 2.8284 कॉमन निकाल लेते हैं. थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट्स जो है ना, दे टेक दिस 2.8284 कॉमन विथ एंगल केप्ट इन द ब्रैकेट, यानी एंगल वहीं पर रहेगा, एंगल 45 e raised to power this and plus एंगल minus 45 multiplied by e raised to power this, है ना. प्लीज डोंट डू दैट because this complete term is representing polar form. This complete term is representing polar form. Okay, fine. So this is your answer. और उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल कॉपी करना है. Is it clear with this numerical? Any question? Any question? Okay. So please, all of you, please copy down this. Even while writing the answer, if you find any problem, any query, let me know. Yes. सर ये पोल्स हमेशा लीनियर